Good morning everyone. Welcome to the science class. As you all know that from next week you are going to have your PT1 exams. So this week we are going to do the revision of the syllabus. The chapters which are coming in your PT1 exams are lesson number 1, 2 and 3. So let's start the revision from lesson number 1, which is nutrition in plants. Now first of all, what is nutrition? The definition of nutrition is process of obtaining and utilizing food by organisms. प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मीन्स फूड लेना और उसको यूटिलाइज करना ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ये न्यूट्रिशन है. जो हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है. वो खाना हमारी बॉडी के अंदर गया एंड इट इज यूटिलाइज्ड. किस चीज़ के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा है? खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क करे, जो रिपेयर अंदर जो हमारी बॉडी के सेल्स है उनकी अच्छे से ग्रोथ हो, रिपेयर हो. इसलिए हमें खाना खाना पड़ता है, इसलिए हमें खाना खाना चाहिए. सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट बाय द ऑर्गेनिजम्स. नाउ व्हाट इज इन द फूड? जो हमें फूड में ऐसा क्या है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है या जो हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है? सो फूड हैज़ द components that are required for our body and those components are known as nutrients. फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स. These are all the nutrients that is present in the food and it is required by every organisms for the proper functioning of the body. So next is nutrients. Nutrients are the components of food necessary for our body. Food में कुछ components जो हमारी body के लिए necessary है. Now coming to the mode of nutrition. Now I want to say that here I am not explaining in very detail. I am just taking the main important points that are necessary for the exam points of view. So if you want the detailed explanation then you can watch the previous videos. जो previous videos बनाए हैं lesson number 1 जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप वो वीडियोस देखिए फॉर दी होल डिटेल एक्सप्लेनेशन. इन टुडेज वीडियो जो मेन पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं और ब्रीफ में जो है मैं सारे टॉपिक्स आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगी. सो नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स सबका अपना खाना खाने का अलग अलग तरीका होता है. कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो है, तो उस बेसिस पर हम देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Now first is autotrophic nutrition. Autotrophic, auto word means by self. Auto कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या होती है? अपने आप से चलने वाली ऑटोमेटिक मशीन है या ऑटो, कोई भी ऑटो चीज़ है तो हम उससे क्या समझते हैं कि वो अपने आप हो रही है चीज़. ऑटो मीन्स सेल्फ. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms prepare their food by their own. जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. एंड हु प्रिपेयर्स देयर फूड बाय देयर ओन? अपना खाना कौन प्रिपेयर करते हैं? ग्रीन प्लांट्स. So you can see here living organisms can make their own food and particularly which living organisms? Green plants. Green plants exhibit this mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition, and therefore they are called autotrophs. The organisms that perform this autotrophic nutrition, they are known as autotrophs. So as green plants make their own food, we can say that green plants are the autotrophs. And by which process they make their food? They make their food by the process of photosynthesis, which we will going to study later. Okay.
Now next is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organisms cannot make their own food and they are dependent on others for their food. जिसमें organisms अपना खाना खुद नहीं prepare करते हैं और दूसरों के ऊपर दूसरे plants और animals के ऊपर dependent हैं अपने खाने के लिए. So that mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. Living organisms depends on others for their food. Except green plants, all other living organisms, mostly all other living organisms are heterotrophs. क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. Okay? कैन वी मेक आवर ओन फूड? क्या हम अपना खाना बना सकते हैं? अब आप बोलेंगे हाँ हमारी मम्मी तो हमारे लिए खाना बनाती है, बट नो, जो रॉ मटेरियल्स हैं क्या वो आपकी मदर प्रिपेयर करती हैं? जो स्पाइसेस उसमें यूज हो रहे हैं, जो वेजिटेबल्स उसमें यूज हो रही हैं, वो आपकी मदर प्रिपेयर नहीं करती हैं. वी गेट अवर फूड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स. सो हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए. प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होंगे तो वी हैव नथिंग टू ईट. So we are heterotrophs. Organisms that exhibit this mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition, they are called as heterotrophs. Okay. Now coming to the process of photosynthesis in detail. What is photosynthesis? Photosynthesis is a process in which green plants make their own food in the presence of sunlight and chlorophyll by utilizing carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. एंड द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll prepares glucose plus oxygen. अब फूड जो है प्लांट्स में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर इट. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. और ग्लूकोज क्या है? एक तरीके की शुगर है. ओके, शुगर के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बट दे store their food in the form of starch. See, food is prepared in the form of glucose and stored in the form of starch. इसको याद रखेंगे हमेशा. Plants prepare their food in the form of glucose, which is a sugar, and the leftover food which is stored, it is in the form of starch. Okay. Now sugar and starch both are carbohydrates. Carbohydrates के दो sources होते हैं, sugar और starch. तो जो फूड प्रिपेयर हो रहे हैं प्लांट्स में वो शुगर के फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में है, और जो स्टोर्ड फॉर्म है फूड का या कार्बोहाइड्रेट्स का वो स्टार्च के फॉर्म में है इन प्लांट्स. ओके. Now next coming to conditions necessary for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं? ऑब्वियसली यहाँ मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं. तो क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. So these four are the conditions that are must for the process of photosynthesis. And when we are talking about sunlight, this means that the photosynthesis occurs in the presence of sunlight only. That means in the day. रात के टाइम में at night photosynthesis do not take place because sunlight is not available. तो जो plants अपना food prepare कर रहे हैं वो डे टाइम में prepare कर रहे हैं, और जैसे जैसे शाम होती जाती है उनका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है, और सनलाइट जब बिल्कुल खत्म हो गई, सन बिल्कुल छुप गया, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खत्म हो जाता है. नेक्स्ट डे फिर जब सन निकलना स्टार्ट होगा, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होगा. पहले स्लो रेट पे स्टार्ट होता है, और जब सनलाइट आफ्टरनून में मैक्सिमम होती है उस टाइम फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है. जितनी ज़्यादा सनलाइट उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है.
So conditions necessary for photosynthesis are number 1 chlorophyll. Chlorophyll क्या है? It is the green colored substance present in leaves. And one main point also, where does photosynthesis occurs? In leaves. Photosynthesis means जो खाना बना रहे हैं plants, वो कहाँ पर बना रहे हैं? वो leaves में food prepare हो रहा है. ग्रीन प्लांट्स हमेशा, जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो उनका फूड प्रिपेयर हो रहा है वो लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है. अब क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस. द प्लांट्स दैट आर ग्रीन इन कलर हैव क्लोरोफिल इन देम. ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, ऑब्वियसली सनलाइट. सनलाइट कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. हमने कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पढ़ा था. कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है ना. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एंटर्स इनटू द लीफ. लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमेटा. अब व्हाट इज दिस स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस में. जो लीफ का सरफेस है बहुत छोटे 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 पोर्स मीन्स होल्स, छेद प्रेजेंट हैं उसमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और फिर ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, इट अकर्स थ्रू दी स्टोमेटा. स्टोमेटा ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर ऑक्सीजन को रिलीज करता है. स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है? स्टोमेटा हैज टू गार्ड शेप सेल्स. गार्ड सेल्स प्रेजेंट है जो कि किडनी शेप के होते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा इज लाइक दिस. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का. These are the guard shapes which these are the guard cells. ये guard cells है, 2 guard cells है जो किडनी शेप या हम कह सकते हैं बीन शेप स्ट्रक्चर है. राजमा जैसे, राजमा आपने देखा होगा बीन होता है, वो बीन शेप स्ट्रक्चर. एंड दीज आर कॉल्ड दी गार्ड सेल्स. ये ऐसा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है. ऑब्वियसली इसके आसपास जो है वो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो स्टोमेटा जब वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? ये जो स्टोमेटा, ये स्टोमेटा का पोर है बीच में, स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाता है. ये इस टाइम ओपन है. अगर इस फॉर्म में है स्टोमेटा तो द पोर इज ओपन. ये इस टाइम जो स्टोमेटा का पोर है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करने से गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं. अब जब कोई चीज स्वेल होगी तो बीच का जो हॉलो पोर्शन है स्वेल होने से वो पीछे की तरफ गया. बैलून है, आप मान लीजिए 2 बैलून है, 2 बैलून को आप फुलाएंगे तो उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा. तो ये इस टाइम स्टोमेटल पोर ओपन है और जैसे जैसे ये वाटर को लूज करना शुरू कर देते हैं ये फिर से श्रिंक हो जाते हैं इस तरीके से. अब इनका जो पोर है वो क्लोज हो गया. दिस इज द क्लोज्ड स्टोमेटा एंड दिस इज द ओपन स्टोमेटा. हियर द स्टोमेटल पोर इज ओपन एंड हियर इट इज क्लोज्ड. Okay, so carbon dioxide enters the leaves through the stomata. ये स्टोमेटा लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? ऑब्वियसली फ्रॉम द रूट्स. सॉइल. सॉइल में हम वाटर डालते हैं. व्हेन वी वाटर द प्लांट्स हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो वाटर वहाँ से गायब हो जाता है. तो वो कहाँ जाता है? वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और रूट्स फिर पूरे प्लांट्स में वाटर को अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू पूरे प्लांट्स में वाटर की सप्लाई करते हैं थ्रू द जाइलम वेसल. दिस वी विल गोइंग टू स्टडी इन द हायर क्लासेस. इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है. स्टिल आई एम टेलिंग यू, जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, इट इज फ्रॉम द जाइलम टिश्यूज और जाइलम वेसल. जाइलम एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में प्रेजेंट जो वाटर को ऊपर की तरफ लेके जाता है.
तो वाटर इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स अलोंग विद मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. सॉइल में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है प्लांट. सो दीज 4 आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर. फर्स्ट क्लोरोफिल, देन सनलाइट, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज वाटर. नाउ अभी मैंने आपको बताया जो फूड स्टोर हो रहा है प्लांट में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो हाउ विल वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? अगर हमें ये पता लगाना है कि वेदर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज बीन डन बाय सर्टेन प्लांट, तो हम कैसे पता लगाएंगे? जब हम अगर स्टार्च प्रिपेयर हुआ है उसमें, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, क्योंकि स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फूड है. तो स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं. टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड. आयोडीन सॉल्यूशन क्या है? अगर आपका प्लांट्स में स्टार्च प्रेजेंट है, then the leaf will turn in blue black color on putting the iodine solution on it. लीफ पे आयोडीन सॉल्यूशन जब हम डालेंगे और अगर लीफ ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी, दैट मीन्स द स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ. इफ there is no change in color on putting the iodine, then that means starch is not present in the leaf. तो स्टार्च के टेस्ट को प्रेजेंस करने के लिए हमेशा याद रखेंगे वी हैव टू यूज आयोडीन सॉल्यूशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फोटोसिंथेसिस इज गैस यूटिलाइज. जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में गैस यूज हो रही है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ हमने देखा है रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ही फूड प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है, प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड द गैस दैट इज रिलीज्ड इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं. ओके, एंड इन ह्यूमंस इट इज ऑपोजिट. वी यूज ऑक्सीजन गैस एंड वी एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस को एक्सेल आउट करते हैं. But plants take in carbon dioxide and they releases oxygen. Okay, so gas utilized in the process of photosynthesis is carbon dioxide, and the gas released in the process of photosynthesis is oxygen. Now I hope the process of photosynthesis is clear to you. Now we go to the next topic. Now let's study heterotrophic nutrition in detail. Heterotrophic nutrition, as we have discussed earlier, is the nutrition in which organisms cannot prepare their own food and they are dependent on others for their food. So on the basis of that, heterotrophs are of 3 types. 3 types के heterotrophs होते हैं. First is parasitic plants, then saprophytic plants, and then symbiotic plants. Now we will study these 3 in detail. What are parasitic plants? Parasitic plants are those plants that derive their nutrition by living in or on the body of other living organisms. Means जो plants दूसरे अदर प्लांट्स की बॉडी के ऊपर रहकर उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं. खुद से अपना खाना नहीं बना सकते. सच प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन इन कलर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड. तो वो दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर रहते हैं. द फेमस एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा. अमरबेल आपने सुना होगा. अमरबेल क्या करता है? दूसरे प्लांट की बॉडी पे अपने आप को रैप कर लेता है और ऐसे कॉइल हो जाता है और फिर उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है. सो कस्क्यूटा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स विच हैज द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टोरिया. हॉस्टोरिया स्पेशल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स कस्क्यूटा प्लांट में प्रेजेंट होते हैं जो दूसरे ट्री में अपने आप को पेनिट्रेट करते हैं. मतलब हॉस्टोरिया जो है वो दूसरे ट्री में घुस जाता है और फिर वहाँ से अपना जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है.
Cuscuta is one example of parasitic plants. Other example includes mistletoe. Mistletoe भी एक parasitic plant है. Okay, so Cuscuta, mistletoe, and one other example is Rafflesia. These are the examples of parasitic plants. Cuscuta, mistletoe, and Rafflesia. These plants lives in the body or on the body of other plants to obtain their nutrition. Such plants are called parasitic plants. Now coming to saprophytic plants. Saprophytes हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. Saprophytes कौन होते हैं? That depends on the dead and decaying matter for their nutrition. जो dead और decaying organic matter से अपना nutrition obtain करते हैं. So organism or plants that obtain its nutrition from dead and decaying matter are known as saprophytic plants. Example includes fungi. And the main thing that is in these plants is it lacks chlorophyll. Chlorophyll नहीं होता. Chlorophyll मतलब green pigment. Chlorophyll is a green pigment. तो chlorophyll नहीं होगा तभी ये दूसरे plants पर depend होते हैं अपना food obtain करने के लिए. Example हो गया इनका fungi और mushroom. The other example is other example is Indian orchid or snow orchid. Indian orchid, snow orchid और fungi जो mushroom basically fungi जो saprophytic plants का example है. Again saprophytic plants कौन से plants हैं? That obtain their nutrition from dead and decaying organic matter. Example हो गया आपका mushroom which is a fungi. Other example हो गया आपका Indian orchid. Okay. Now coming to symbiotic plants. Symbiosis का क्या मतलब है? Symbiosis means the partnership or we can say association between the two organisms. And both of the organisms are benefited from each other. Such plants that exhibit this type of relationship are known as symbiotic plants and the plants are known as symbionts. Symbionts उनको कहते हैं वो plants होते हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए और दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिटेड है. मतलब एक को दूसरे से कुछ फायदा होता है तो पहले वाले को दूसरे से कुछ फायदा होता है. Example include, see first the definition. It is the association between two organisms where both of them are benefited. दोनों को ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ फायदा होता है. Example है famous example is lichen. Lichen is the association between the algae and fungi. Algae और fungi का association है lichen. अब मैंने आपको क्या बताया कि एल्गी और फंजाई ये सिम्बायंट्स हैं और दोनों को ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ फायदा है. तो क्या फायदा है? एल्गी प्रोवाइड्स फूड टू द फंजाई. तो फंजाई को एल्गी से क्या फायदा हो रहा है? एल्गी से ये फायदा हो रहा है कि एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड कर रहा है. और एल्गी को क्या फायदा हो रहा है फंजाई से? फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी. तो इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिटेड है, दोनों को ही एक दूसरे से फायदा हो रहा है. तो दिस मीन्स दीज टू एग्जिबिट द symbiotic relationship. Symbiosis can be shown in between these two symbionts. Other example is the associationship between the leguminous plants and the bacteria Rhizobium. राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लाइक पी प्लांट, ग्राउंडनट प्लांट, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है. इनके बीच में जो एसोसिएशनशिप होती है दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस. अब सिम्बायोसिस में क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिटेड हैं तो लेग्यूमिनस प्लांट्स को राइजोबियम बैक्टीरिया से क्या फायदा है और राइजोबियम बैक्टीरिया को लेग्यूमिनस प्लांट्स से क्या फायदा है? तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स नाइट्रोजन जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं. तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है जो कि प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं या ले सकते हैं. तो इस तरीके से प्लांट्स को राइजोबियम से क्या फायदा हो गया? राइजोबियम
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया को प्लांट से क्या फायदा है? राइजोबियम बैक्टीरिया को ये फायदा है कि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स नोड्यूल्स में रहते हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया को जगह मिल रही है रहने के लिए। लेग्यूमिनस प्लांट्स उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों को ही एक दूसरे से फायदा हो गया। प्लांट्स को ये फायदा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया को ये फायदा है कि उसको शेल्टर और फूड मिल रहा है लेग्यूमिनस प्लांट से। So this is also the example of symbiotic relationship, or we can say symbiotic plants. So these three are the parts of the heterotrophs. Heterotrophic nutrition के अंदर आ गया. Now coming to the insectivorous plants, which is the last topic of this chapter. Insectivorous plants कौन से plants हैं? As the name suggests, the plants that trap insects and kill them for obtaining the nutrition. कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं अपने अंदर और उनको किल करके उनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका पिचर प्लांट. पिचर प्लांट इज वन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड द अदर एग्जाम्पल वी कैन से इज वीनस फ्लाई ट्रैप. वीनस फ्लाई ट्रैप एक और एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का. First, see the definition. Plants that trap insects to get their nutrition. जो plants insects को trap करते हैं. पिचर प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो पिचर क्या होता है? मटके टाइप का. मटके टाइप का स्ट्रक्चर है और उसमें एक लिड होती है. तो जैसे इंसेक्ट प्लांट पे आकर बैठता है वो लिड ऐसे क्लोज हो जाती है, तो इंसेक्ट ट्रैप हो गया. ट्रैप मीन्स फंसना. उस प्लांट में, पिचर प्लांट में इंसेक्ट फंस गया, फिर प्लांट उसको किल करके उसमें से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है. नाउ द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दीज प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं. देन वाई आर नॉट दे दी ऑटोट्रॉफ्स? वो ऑटोट्रॉफ्स क्यों नहीं है? ग्रीन प्लांट्स तो सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो वो अपना खाना खुद क्यों नहीं बनाते? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्यों इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं ग्रीन होने के बावजूद भी? बिकॉज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन द रीजन वेयर द सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जो सॉइल नाइट्रोजन में डेफिशिएंट होता है, मींस जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वहां ग्रो करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं. याद रखेंगे हमेशा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स although they are green in color but still they are dependent on insects for obtaining their nutrition, because such plants grow in the region where the soil is lacking in nitrogen or soil is deficient in nitrogen. So to meet the requirement of the nitrogenous materials or nitrogenous compounds, these plants trap the insects. See here, insectivorous plants trap insects and kill them to meet the requirement of nitrogenous nutrients. नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स की नीड को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट लेसन नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मैंने ब्रीफ में कहा था कि दैट आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर इन ब्रीफ, बट स्टिल आई हैव explain you each and every detail of the chapter. So please watch the video carefully, again and again repeated, उसको दोबारा बैक कीजिए, फिर से देखिए, वीडियो सुनिए, बार बार चैप्टर रीड कीजिए. एज यू नो दैट द एग्जाम विल बी इन द फॉर्म ऑफ MCQ. MCQ की फॉर्म में होगा एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. सो द क्वेश्चन इज गिवन एंड देयर विल बी 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू टेक द correct option. You have to select the correct option. So for that you have to study the chapter very carefully. Chapter बहुत अच्छे से read करेंगे, जो की टर्म्स है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, MCQs, true false, fill-ups करेंगे, okay, and go through the chapter thoroughly so that you will be able to do the exam
very well and watch the videos. Don't forget to watch the videos. Okay. So we will meet tomorrow in the next class with the revision of lesson number 2, that is nutrition in animals. Till then, have a good day. Thank you so much.